Here is the next concept. So in the last class we have successfully completed chapter exercise 1.b. Now this is our next topic for next exercise, that is your properties of multiplication of integers. So in the last class we have learned the properties of addition, isn't it? Addition and closure, associative, commutative, isn't it? And similarly we have learned what? The properties of subtraction also. Subtraction are closure or not? Closure or not? Not closure. And not commutative. And not. Now it is a closure because ultimately you are getting a integer. But it is not a commutative and as well as associative. Similarly, those properties we are also going to study here also. Okay? Properties of multiplication of integers. तो पहला क्या properties है आपका? पहला वो properties है आपका closure properties. What? Similarly, we are going to study the next property. It is what? Commutative property. We are going to study about associative property of multiplication. Next is your distributive property, and next is, it's not an actual property, it's called multiplicative identity. Multiplicative identity. So mainly these 5 concepts we are going to study in this properties of multiplication. So remember, I will make you explain also. Multiplication follow all the properties. It also follows what? Closure property also. It also follows closure property. We can say closure property also, commutative property also, associative property also, distributive property also, and multiplicative identity. What is this? We are going to understand it now. Okay, closure property. What does it say? That if a and b are integer, then the product of a and b equal to something c, and which is also an integer. Means when you multiply any two integer, you are going to get another integer, and that is why we can say that multiplication is close or follow the closure property, or we can say that this means multiplication are close under multiplication are close under multiplication. बोल सकते हैं multiplication are close means this means that integers are close. This means that integers are close. Integer are close under multiplication. जैसे कि example, let me give with an example. मानो कि 3 into 4 क्या होता है? 3 is also integer and 4 is also a integer. इसको into करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा. 12 क्या integer नहीं है? Obvious definitely है. -2 into 4 क्या होगा देखो? -8 होगा. क्या a माइनस integer नहीं है? a. तो आसान सा मतलब ये है कि अगर दो integer को आप मल्टीप्लाई करोगे, दो मिलेगा ना प्रोडक्ट उसका, वो भी क्या होगा? वो भी एक इंटीजर ही है. समझ में आया कि नहीं? कितना सिंपल है. तुम जितना लाखों एग्जांपल ले लो ऐसे होगा आपका पास. ठीक है, जैसे कि -6 ले लो और -2 कर लो, क्या होगा? +12. तो ये इंटीजर नहीं है -12. ऑब्वियसली समझ में आया. सो वी हैव क्लियर द क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ a and b are integer, then a into b is equal to b into a. Clear? Where a into b is equal to b into a. For example, let me give an example. Suppose मान लो 2 into 3. क्या आपको इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं? 3 into 2 नहीं लिख सकते क्या? 2 3 से कितना मिलता है? 6 मिलता है. 3 2 से कितना है? 6 ही तो है. तो हम लोग क्या बोलता था कि multiplication follow the closure property. Definitely. Hence multiplication is commutative for integer. ठीक है? Multiplication is commutative under integer या फिर for integer, या फिर for भी लिख सकते हैं, या फिर for में इंटीजर के लिए क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव है. उल्टा करो. और भी एग्जांपल लो सकता है आप, जैसे कि -2 into 3. इसको उल्टा कर कितना मिलेगा? इसको उल्टा करो क्या होगा देखो तो 3 into -2 क्या होगा? -6 होगा कि नहीं? दैट मीन्स रिवर्स करो आपको सेम आंसर मिलेगा. सो वी कैन डेफिनेटली से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो और ओबे द कम्यूटेटिव property. Very well. Clear? Any doubt in this point? No. Good. Now let us move to the next point. That is your associative property. If a into b into c, if you multiply these two terms first, is equal to a into b into c. That means b into c. If you add that one integer first, you are going to get the same resultant. For example, let me give with an example.
Let me make you understand with the example. Look here, my dear. Look here, everyone. Suppose I'm thinking 2 into 3 into 4. Okay? 2 into 3 into 4. I'm giving an example. Suppose I'm doing this one first. 2 3 जा. अभी next में क्या करते हैं हम लोग? 2 into 3 into 4 इसको पहले करते हैं हम. 2 3 जा 6 6 4 जा 24. ठीक है? अभी देखो इसमें इन दोनों को पहले करता है बी और सी को. बोलो 2 into 3 4 जा 12 2 12 जा 24. आया समझ में? That means multiplication is also following what property? Associative property. What is clear, my dear? Very good. So we can say that hence multiplication is associative for integers. Clear? You can understand with other example also. Suppose consider -1 into 2 into -3. Okay, look here. Let me make you understand this one. First this ये दोनों को पहले करो. And next one -1 into 2 into -3 इन दोनों को पहले करो. देखो क्या होता है. -1 into 2 कितना होगा? -2. इधर कितना है? -3. माइनस कितना होगा? +6. उस तरफ देखो. अभी उसको पहले करते हैं. -1 into 2 3 जा -6 1 6 जा 6 माइनस प्लस. क्या समझ नहीं मिला? Yeah, we can say that definitely yes. Multiplication also follows, or it also obeys the associative property. Clear, my dear? Okay. Distributive property. Suppose let us consider here that A, B and C are integer. ठीक है, तीनों क्या है? Integer है. अगर हम इसको ऐसे लिखें A into B minus C suppose, ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. We can distribute it. B minus C है कि नहीं? ये इंटू किसके लिए है? दोनों के लिए. So can you write A into B and A into C? So what you can write? A into B, A minus A into B or A into C, A into C. So it is called distributive property, and it follows the distributive property. Or you can take addition also. Suppose you can take like that also. A into B plus C. Then also you can distribute into a specific term. A into B plus A into C. समझ में आएगी नहीं? तो ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मानता है. एग्जांपल बता दे, देखो ध्यान से. सपोज 5. ओके, 5 into 3 minus 2. 5 into 3 minus 2. देखो ध्यान से. 5 3 जा 15 minus 5 2 जा 10. कितना होगा देखो तो? 5 हो रहा है कि नहीं? तुम अगर वैसे करके देखो, अभी सिंपली करके देखो. अभी 5 into 3 minus 2. 3 minus 2 कितना होता है? 1 नहीं होता है. देखो अभी 5 नहीं हो रहा है क्या? मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. Hence we can say hence multiplication is distributive what? For integers. Multiplication is distributive for integers. I hope it is very clear. Remember कि multiplication possess, और स्टेटमेंट लिख दो कि multiplication possess distributive property. एडिशन और सब्सटेंस के ऊपर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. जैसे कि अभी देखो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है? एडिशन है. तो क्या हो रहा है? ये क्या फॉलो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं. समझ में आया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब क्या है? 1. याद रखना. व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1 you get the same number. जैसे कि if a is a integer मान लो. आप क्या करते हैं? a into 1 करते हैं. क्या मिलेगा आपको? वापस क्या मिलेगा आपको? a मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से. 2 into 1 क्या होगा? देखो 2 होगा. 5 1 जा कितना होगा? 5 होगा.
100 इंटू 1 से कितना होगा 100 ही होगा। -2 1 से कितना होगा -2 होगा। -10 इंटू 1 से कितना होगा -10 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर के साथ अगर 1 को इंटू करेगा आपको वही नंबर मिलने वाला है। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। समझ में आया ना ये बात। नाउ लेट अस अभी नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस क्या है। अगर ए के साथ कुछ भी जीरो के साथ इंटू करेगा तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। मीन्स एनीथिंग, ये चीज़ को हमें से याद रखना कि एनी थिंग इंटू 0 इज गिव्स यू व्हाट 0। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होता था कि एनीथिंग इंटू 1 इक्वल टू व्हाट एनीथिंग। ये बहुत ब्रह्मवाणी है, इसको याद रखना हमेशा। एनीथिंग इंटू 1 इक्वल टू एनीथिंग, बट एनीथिंग इंटू 0 गिव्स यू व्हाट 0। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0। क्लियर हो गया ना। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑलवेज सो व्हेन याद रखना ये चीज़ को इक्वल टू 0 होता है हमेशा। ना प्रॉपर्टीज ऑफ -1, अगर आप किसी भी नंबर को -1 से इंटू करेगा तो आपको उल्टा मिलेगा उसका। क्या मिलेगा उसका उल्टा मिलेगा। जैसे कि इफ यू मल्टीप्लाई a इंटू -1, देखो a इंटू 1 के साथ इंटू करने पर क्या मिलता था आपको a मिलता था। लेकिन -1 के साथ इंटू करके क्या मिलेगा आपको -a मिलेगा। देखो a का उल्टा क्या है -a नहीं है क्या। समझ में आएगी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2 इंटू -1 क्या मिलेगा -2 मिलेगा। तो 2 का उल्टा -2 नहीं है क्या। हम लोग नंबर लेना पड़ा था ना, याद है। क्लियर। सो दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद -1 यू आर गोइंग टू गेट द एडिटिव इनवर्स। उसका उल्टा मिलने वाला है, तो क्या मिलेगा आपको। अगर आप जो भी नंबर अगर -1 से इंटू करेगा तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखो वेयर -a is the additive inverse of a, है कि नहीं। -1 यहाँ पे क्या है माइनस a क्या है, इसका उल्टा नहीं है क्या। अब देखो ये दोनों जोड़ो तो 0 मिलेगा आपको। देखिए देखो a प्लस -a क्या मिलेगा तो 0 नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको -3। इज नॉट इट क्लियर। देखो अभी 3 और इसको जोड़ो तो क्या मिलेगा। देखो तो 3 प्लस -3 जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ -1। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Similar properties we can go through the multiplication or division properties also. Clear? So here is the next property, there is closure property. The properties of division of a integer. Properties of a division of a integer. देखो first property क्या है division का closure property. Okay? Let us see. Let us understand with an example. Okay? If A and B are integer, then A divided B is equal to C, where C may not be an integer। समझेगा चीज को। यहाँ सुनो 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 2 होता है कि नहीं। अभी अगर बोलेगा 8 डिवाइडेड बाई 6 अभी क्या होगा देखो तो चलो करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 6 कितना आया 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 6 ऊपर में ऐसा होगा कि नहीं तो है कि नहीं। तो इसको अगर ऐसे लिखिएगा 1 2 बाई 6 ऐसा होगा ना 8 बाई 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन क्या इंटीजर है क्या नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन तो इंटीजर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये C इंटीजर नहीं भी हो सकता है या फिर डेसिमल भी हो सकता है। इसमें डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट इंटीजर, है कि नहीं। चलो इसको डेसिमल में लिखते हैं हम लोग। देखो 8 डिवाइड बाई 6 क्या होगा 6 1 जा 6 0 0.0 लाओ 6 3 जा 18 क्या 2 आएगा फिर 6 3 जा फिर 0 आएगा 6 3 जा 18 क्या 1.33 आ रहा है क्या 1.33 से इंटीजर नो। सो वी कैन से दैट द डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। Hence division is not closed under integer. Clear हो गया। Hence we can write hence division is not closed for
integer. I hope it is clear very well. Huh? Now let us move to the next property. That is what? That is your commutative property. What is the property? Commutative property. Shall I wrap this one? Yes. No, sir. Okay. Next is your commutative property. Commutative property. What does this property says? If, look here, if a and b are integer, अगर a and b are integer, तो देखो क्या ये हो पाएगा? If you divide a divided b, will it equal to b divided by a? Never. How? Let us understand an example. Let us understand with an example. Suppose simple example. 4 divided by 2. Look here first. 4 divided by 2. What is the answer? 2. The answer of this one is 2. Can I say 2 divided by 4 is the same result? No. No, never. How it can be? 4 डिवाइडेड देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 4 देखो 2 कितना 2 होगा, लेकिन अगर 4 डिवाइड करेगा देखो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 4 तो कितना नहीं आएगा, पॉइंट लगेगा 0.5 कितना आएगा आंसर 0.5. दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4. मतलब a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. Hence we can say the statement hence division is not commutative for integers. I hope it is very clear, very well. Okay, now let us move to the next point, that is your associative property. What is that? Associative property. Okay, let us understand what is this associative property. Associative property, come on, let us understand that if a, b and c are integer, if a and b and c are integer, then can I say that a divided by b divided by c is equal to a divided by b divided by c? Huh? Can I say it? Don't know. Let us see. ये नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? इसको समझते हैं. Let us understand with a very beautiful example. Okay, all right? Okay, देखो यहाँ पे छोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं. आप मानो कि 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2. हाँ, दो बार लिखते हैं इसको. 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2. In first case, let us do this, carry with this two term, and then carry with this two term. Okay? 8 divided by 2, 4 कितना होता है? 2 होता है कि नहीं? फिर से 2 divided by 2 कितना होता है? 1 होता है. समझ में आएगी ना? Okay, look here now. Let us understand with that example. 8 divided by 4 divided by 2. Example I am taking. Okay, so let us do this one first. These two term first. 8 divided by 4 कितना होता है? देखो तो 8 divided by 4 कितना होता है? 4 2 जा 8. तो इसका आंसर 2 नहीं हो गया? ये डिवाइड 2 यहाँ बच गया. फिर 2 divided by 2 कितना होता है? देखो तो 2 divided 2 1 जा 2 नहीं होता है. तो आंसर कितना 1 नहीं है. नाउ लेट अस मूव टू हियर. अभी देखो, अभी इन दोनों का पहले केस में इन दोनों को पहले किया था ना, अभी इन दोनों को पहले करता है. देखो 4 divided by 2 कितना होता है? 4 divided by 2 2 2 जा 4 नहीं होता है, तो 2 हो गया. अभी 8 divided by 2 कितना होता है? हाँ, 8 divided by 2 कितना? 2 4 जा 8, तो कितना 4 होगा कि नहीं? तो ये आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना. मतलब क्या? a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c. ये फॉलो नहीं कर रहा है. तो अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या डिवीजन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मानता है क्या? नहीं मान रहा है ना. सो वी कैन से देखो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मान रहा था, है कि ना, और एडिशन नहीं मान रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं मानता है. So hence we can say that what we can say, hence division is not associative for integer. Hence division is not associative
not associative for integer. I hope it is clear. Very good. So now let us go to another point, that is your property of 1. Property of 1. Now this is the last property. Okay, we'll understand some properties of division. So properties of 1. So remember any number divided by 1 is equal to any number. Okay, this one you remember. Okay, fine. Go from that side. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. Suppose example 6 divided by 1. What will get? 6 only. Not clear? 1 6 6. अगर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? माइनस 8 मिलेगा. So I hope it is clear. Anything by 1 is equal to anything. It's a very important concept. Clear? Now properties of minus 1. Properties of minus 1. So when you divide anything, now look here. Anything by any number, you can mention any number divided by minus 1 is will get minus any number. Minus any number. It's a very important concept. Remember this one. Okay. Or also this any number is the additive inverse. For example, let me make you understand. Suppose 6 divided by minus 1. What will you get? Minus 6. And this minus 6 is the inverse of 6. समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल जैसे कि माइनस 8 डिवाइडेड माइनस 1 क्या होगा? कितना होगा आपका? प्लस 8 नहीं होगा क्या? तो देखो माइनस 8 का उल्टा क्या है? 8 नहीं है क्या? 6 का उल्टा क्या है? माइनस 6 है कि नहीं? तो अगर आप किसी भी नंबर को माइनस 1 से डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा? उसका नेगेटिव वाला नंबर. समझ में नहीं आया? कौन सा नहीं आया? ये वाला कैसे? देखो माइनस 1. देखो बहुत बढ़िया. देखो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1. ठीक है, वेरी सिंपल. यहाँ पे क्या है? प्लस है ना. 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2 होता है ना. माइनस से प्लस से क्या होता है? ये देखो माइनस. हाँ हमें भी नहीं आया. आई बोलो 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1. प्लस साथ में क्या है? प्लस है कि नहीं? तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड 4 कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? तो माइनस से प्लस है क्या होता है? माइनस नहीं होगा. हाँ तो पहले पढ़ा था इसलिए आप पहला क्लास मिस किया था ना. ये क्या होता है? प्लस से क्या होता है? प्लस होता है. माइनस से प्लस से क्या होता है? माइनस होता है. प्लस से माइनस से क्या होता है? माइनस होता है. माइनस से माइनस से क्या होता है? तो वही है. देखो माइनस से प्लस से माइनस नहीं होगा. इतना याद रखो. हो गया? नॉट क्लियर? ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. रिमेंबर जीरो. मानो कि किसी को देखो एग्जांपल इसको बहुत याद ध्यान देना. 0 बाय एनीथिंग या फिर 0 बाय एनी नंबर. 0 बाय एनीथिंग और एनी नंबर याद रखना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 0 बाय एनीथिंग और या फिर और एनी नंबर विल ऑलवेज गिव यू 0. एनीथिंग बाय और एनी नंबर. 0 बाय एनीथिंग और एनी नंबर. जैसे कि एग्जांपल मानो किसी को मैच में 100 से कितना मिल गया? हाँ, जिसको 100 तो नीचे रहता है. 100 से तो 0 मिला. तो कितना मिला उसको? 0 मिला कि नहीं? समझ में आया बात को? मानो कि तुम लोग फर्स्ट टाइम में किसी को कोई एक स्टूडेंट है जो स्कूल में आता नहीं है, वो उसको 25 से उसको 0 मिल गया. उसको कितना मिला है? 0 मिला है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि 0 बाय एनीथिंग, 0 बाय जो भी हो इज इक्वल टू व्हाट? 0. समझ में नहीं आया? इतना क्लियर हो गया? अभी लास्ट कंसेप्ट क्या है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. इतना पूरा डिटेली बता रहा है, आप दोनों समझा रहा है. देखिए डिवीजन बाय 0. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? देखो देखिए एनीथिंग याद रखना. एनीथिंग या फिर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस. ये चीज को बहुत याद रखना. और ये मीनिंगलेस क्यों है? ये क्लास 7 में आप लोगों ने सिखाते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. क्यों 0 से डिवाइड नहीं कर सकता? क्यों? क्या वजह है? हाँ,
अब जैसे कि 5 डिवाइड बाई 0 आप डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर सकता ना। तो ये जीरो क्यों नहीं कर सकता है, ये अभी नहीं ज़रूरत है आप लोगों का, हर क्लास यू लर्न इट वाई, क्यों ऐसा होता है, क्लास 9 में नहीं क्लास 11 में मिलेगा आप लोगों को। H2 क्लियर हो गया? जस्ट अभी के लिए याद रखना कि एनीथिंग बाई जीरो इज कॉल मीनिंगलेस, या फिर और इट इज ऑल्सो कॉल और नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड, और इट इज ऑल्सो कॉल whatever infinitive or whatever infinity. Clear? Yes. Very good. So this is a very important concept we have learned. So now you please carry out with exercise 1C. It is a homework. All right? Very good.